स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन. Hello students, welcome to Study IQ. Today we will discuss that why Adi Shankaracharya's philosophy, that is Advaitwad, is considered as one of the most consistent and perfect philosophy. In fact, it is considered as a logical culmination of Indian thought or Indian philosophy. One by one we will going to discuss. Okay, the first point of logical culmination of Indian thought is this. Okay, in Indian philosophy, it starts with pluralism, but ultimately anything can be analyzed in the form of not only pluralism, it can be analyzed into dualism and dualism with monism. And monist philosophy is considered as one of the most consistent philosophy. Indian philosophy started with pluralism, such as Sankhya school, okay, Purush and Prakriti, pluralistic realism of Sankhya. Or you can say Nyay Visheshik school, which is also a pluralistic school, multiple atom, yes or no? Or you can consider Charvak. All these philosophers are what? Pluralistic schools. That they accepted multiple substances, multiple realities. But multiple reality is ultimately analyzed into one particular reality, yes or no? It can be analyzed. So some other thinkers came and they gave dualism. If there is only one Purush, pure consciousness, and there is only one Prakriti, then it will be converted into dualism. But questions are there. What are the questions? That why Prakriti and Purush are interacting with each other, even if they are having exactly opposite characteristics. And this question is not very easy to answer. In fact, Shankaracharya criticized Sankhya dualism. They criticized, okay, that you cannot consider material Prakriti as a ultimate reality. ठीक है? तो दूसरा pluralism अल्टीमेटली ड्यूअलिज्म में आया. ड्यूअलिज्म से थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उस मटेरियल रियलिटी को कहीं ना कहीं तो आपको बिठाना पड़ेगा. नो क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म आ गया, विशिष्ट अद्वैतवाद. इन विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य ट्राइड वेरी हार्ड टू एस्टैब्लिश, ओके, टू एस्टैब्लिश द रियलिटी ऑफ मैटर एज वेल. बट अल्टीमेटली ही सेड दैट ऑल्दो चित्त एंड अचित्त आर द टू रियलिटी, you cannot deny these two realities, chit, that is consciousness, and achit, that is matter. But ultimate reality is only one reality, and that is Brahma. Last, Shankaracharya said that no, it is one reality, and that reality is pure consciousness. Logical culmination of Indian thought in terms of reality. Yes or no? Pluralism ultimately culminates into non-dualism or monism, that is Advaitavad. No multiple realities. There is only one reality, Brahma Satyam, Jagat Mithya, Jivo Brahmev Na Para. That is why we are saying that Advaita Vedanta is the logical culmination of Indian philosophy. I hope it is clear to you. When it comes to realism and idealism, most of the Indian philosophies are realistic schools, be it Charvak or Nyay Visheshik or Sankhya Yoga or Heenayan or Jainism. They all are a realistic school. What do you mean by realism? Realism means reality exists independent of my mind. Reality is not mind dependent. ठीक है? मेरे दिमाग पे निर्भर नहीं करती है, किसी आइडिया पे, कॉन्शियसनेस पे डिपेंड नहीं करती है. रियलिटी एग्जिस्ट करती है, चाहे हम उसे जाने या ना जाने. दैट इज रियलिज्म. व्हाट इज आइडियलिज्म? आइडियलिज्म, देयर इज वन स्कूल ऑफ आइडियलिज्म इन इंडिया, योगाचार विज्ञानवाद. अकॉर्डिंग टू देम, अलय विज्ञान इज द अल्टीमेट रियलिटी. It is the storehouse of consciousness where all consciousness are there and it is manifesting itself. In fact, it is the Yogachar Vijnanavad school which says that
We all are living in the dream of that infinite consciousness. ये वही स्कूल है. सो आइडियलिज्म, रियलिज्म ये भी हो गया. शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, दोनों ही है. ठीक है, रियलिज्म भी है, आइडियलिज्म भी है. ठीक है, अब रियलिज्म कैसे है, आइडियलिज्म कैसे, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया. फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट शंकराचार्य टॉक्ड अबाउट 3 levels of reality. He said that at first level of reality, that is first is topmost level of reality is पारमार्थिक सत. पारमार्थिक सत, that is spiritual reality. The second level reality is व्यवहारिक सत. That is व्यवहारिक सत means practical reality. And the third level, or you can say lowest level of reality, it's प्रतिभासिक सत. प्रतिभासिक सत. प्रतिभासिक सत means practical level reality, spiritual level reality, and प्रतिभासिक सत means imagination, imaginary reality. Shankaracharya said that these are 3 levels of reality or sat. He gave example of rope as a snake. When there is no proper lighting, you will perceive rope as a snake, or it is like a dreaming state, or like an illusion. But when there will be proper lighting, there will be a rope as a rope. You will perceive rope as a rope because there is a proper lighting. Or you can say waked up state. आप जाग गए हो. शंकराचार्य कहते हैं कि आप अभी भी नहीं जागे हो. एक लेवल पे जागना और आपका बाकी है, और उस लेवल पे आप पहुंचते हो तो ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं. उस लेवल पे सिर्फ एक ही रियलिटी बचेगी और वो है ब्रह्म. He said that प्रतिभासिक सत can be contradicted. It can be contradicted by व्यवहारिक सत. Contradicted by व्यवहारिक सत. And व्यवहारिक सत can also be contradicted. Also be contradicted by पारमार्थिक सत. जैसे आपकी नींद खुली तो आपको पता चला कि यार वो तो सपना था, वो सांप नहीं था, वो तो रस्सी थी. उसी प्रकार से आप व्यवहारिक स्तर पे, अभी हम सब हैं जहां पे हमें सब प्रतीत होता है, वो कहते हैं कि ये भी जो सत है ये भी कॉन्ट्राडिक्ट होगा एक दिन, जब आपको पारमार्थिक सत का ज्ञान होगा. आप जब स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंच जाओगे, उस लेवल पे आपको एक ही रियलिटी पता चलेगी, एंड दैट रियलिटी विल बी द ब्रह्म. एंड ब्रह्म इज अनकॉन्ट्राडिक्टेड रियलिटी. देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ब्रह्म. ठीक है, तो एट व्यवहारिक लेवल शंकराचार्य इज एक्सेप्टिंग रियलिज्म. शंकराचार्य सेइंग कि रियलिटी है, ये जो जगत है ये आपके सामने रियल है, ये अनरियल जगत नहीं है, ये सब कुछ रियल है. लेकिन पारमार्थिक लेवल पे शंकराचार्य कहते हैं कि यहां पे आइडियलिज्म है. यहां पे देयर इज ओनली वन थिंग, दैट इज गॉड, दैट इज यू कैन कॉल इट ब्रह्म, एंड वहां पे एक ही रियलिटी है. ठीक है, और वो है प्योर कॉन्शियसनेस. ठीक है, आगे बढ़ने के पहले बहुत जरूरी सूचना, ये जो फिलॉसफी का बैच स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 27th of January, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड किए गए हैं. एक तो है आपका 5 ऐसे क्लासेस, तो आपको ऐसे क्लासेस की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं और लेने की. और दूसरा है 5 एथिक्स क्लासेस, ये भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 5 ऐसे और 5 एथिक्स क्लासेस है ना. मैं एथिक्स का ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मैं पूरा करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि फिलॉसफी ऑप्शनल का ही एक पार्ट होता है एथिक्स, तो उसमें
नॉर्मल क्लासेस में एथिकल एस्पेक्ट चलते रहेंगे, लेकिन 5 अलग से एडिशनल क्लासेस आपको मिल जाएंगी जिससे एथिक्स का आपका एनरिचमेंट हो जाएगा. सो दीज आर द एडिशनल बेनिफिट्स. 27 तारीख से बैच स्टार्ट होने वाला है. यू कैन यूज SU लाइव कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट. और मैक्सिमम डिस्काउंट से एक और चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अभी 27 तक आपके पास 77% ऑफ का भी चांस मिल रहा है. तो ये 77% ऑफ का चांस उठा सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं ये बैच. 27 से आपका फिलॉसफी का ऑप्शनल बैच स्टार्ट हो जाएगा. ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं so that you will get all the PDFs and all these video lectures on this particular Telegram channel along with some other material. इसके तो दो चीज में सिंथेसिस किया. एक तो आपका क्या क्या सिंथेसिस था हम एक बार और देख लेते हैं. लॉजिकल कल्मिनेशन क्या था? तो पहला वाला तो हो गया प्लूरलिज्म, ड्यूअलिज्म, नॉन ड्यूअलिज्म, अल्टीमेटली मोनिज्म. दूसरा वाला आपका हो गया आइडियलिज्म, रियलिज्म का सिंथेसिस या लॉजिकल कल्मिनेशन. तीसरा आया थीज्म. एथीज्म को लेकर के बहुत सारी बातें होती है. उस समय पे क्या था कि जो वैदिक थॉट्स थे वो थीज्म की बात करते थे. बुद्धिज्म, जैनिज्म आए तो वो नॉन थीज्म या एथीज्म के नॉन थीज्म की बात करने लगे. एथीज्म चार्वाक, ठीक है, आजीविका स्कूल एकदम एथीज्म की बात करने लगा. तो इंडिया में बहुत सारे ट्रेंड थे जो एक साथ चल रहे थे. एथीज्म, चार्वाक, नॉन थीज्म. नॉन थीज्म मतलब यहां पर गॉड नहीं है लेकिन रिलीजन है. नॉन थीज्म आ गया, ठीक है. तो वो रिलीजन बना दिया उन्होंने. सारे रिचुअल्स होंगे एक्सेप्ट, है ना, इनके अपना मेटाफिजिक्स भी है, उन्होंने डिनाई नहीं किया, ठीक है, सिर्फ गॉड को डिनाई किया. और यहां पे तो सब चीज को डिनाई किया, इस वजह से ये एथीज्म हो गया, ठीक है. फिर आया नॉन थीज्म, फिर आया थीज्म, न्याय वैशेषिक स्कूल, कंप्लीट थीस्टिक स्कूल, या द्वैतवाद ऑफ माधवाचार्य, थीस्टिक स्कूल. शंकराचार्य ने कहा थीज्म भी है, एथीज्म भी है, दोनों ही तो सत्य है. आप व्यवहारिक स्तर पे जाओगे, फिर से मैं 3 लेवल ऑफ रियलिटी पे जाऊंगा. तो व्यवहारिक स्तर पे आप जब जाते हैं तो आपको गॉड, दैट इज ईश्वर, दैट इज पर्सनलाइज्ड गॉड, जिसको आप पूजते हैं, जिसकी आप पूजा अर्चना करते हैं, जिससे आप कुछ मांगते हैं, जिसको बहुत सारे आप रिचुअल्स करते हैं उनके लिए, वो तो रियल है. व्यवहारिक स्तर पे आप इस सत्ता को डिनाई नहीं कर सकते. तो थीज्म है किस लेवल पे? व्यवहारिक स्तर पे. लेकिन एथीज्म है, शंकराचार्य कहते हैं कि पारमार्थिक स्तर पे केवल एक ही रियलिटी है, दैट इज ब्रह्म, एंड यू आर द ब्रह्म. तो वहां पे गॉड की कोई जगह ही नहीं बची, तो एथीज्म भी हो गया. दूसरी तरीके से देखें तो एक और है कि गॉड को पाने का तरीका क्या. एक एथीज्म, एक एथीस्ट व्यक्ति गॉड को प्राप्त कर सकता है. शंकराचार्य यहां पे ब्रह्म को बोलते हैं निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म. ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, निराकार है, जिसका डिस्क्रिप्शन पॉसिबल नहीं है, अनिर्वचनीय है, ठीक है. और जब अनिर्वचनीय ब्रह्म को आप डिस्क्राइब करने जाओगे तो हर डिस्क्रिप्शन अपने आप में कहीं ना कहीं उसको फाइनाइट बना देगा. दैट इज वाई शंकराचार्य सेड दैट every description is nothing but negation, and that is why you should describe Brahma, if you want to describe, in a negative manner, that is not this, that is neti. This is the only possible way you can describe the Brahma. नेति. यदि कोई कहे कि ब्रह्म इज सर्वशक्तिमान, आप कहेंगे नॉट दिस, क्योंकि ब्रह्म कई गुना ज्यादा है उससे. नॉट दिस. एथीस्ट भी तो यही बोलता है. जब आप उसके सामने बोलते हो कि दिस इज द रियलिटी, ही विल से नॉट दिस, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस एज अ रियलिटी. ब्रह्म जो है वो सर्वशक्तिमान है, ही विल से नॉट दिस. सर्वज्ञ है, ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीशिएंट है, नो, नहीं है, ठीक है. शंकराचार्य कहते हैं कि इट लॉजिकली लीड्स टू इट इज दिस, इति, ठीक है. तो आप जब नेगेटिव डिस्क्रिप्शन कैन बी लिंक्ड विद द एथीस्ट पाथ, ठीक है. तो शंकराचार्य कहते हैं कि दोनों ही केस में हमारे इसमें थीज्म भी है सेकंड लेवल पे. थर्ड लेवल पे जब आप पहुंच जाते हो तो एथीज्म आ गया. तो एथीस्ट कैन ऑल्सो अचीव द ब्रह्म, है ना. बड़ी रेवोल्यूशनरी फिलॉसफी है ये.
ठीक है, जहां पे सारे कॉन्ट्राडिक्शन से रिजॉल्व हो जाते हैं, थीस्ट के, एथीस्ट के, है ना, वैदिक थॉट के, जैनिज्म के, बुद्धिज्म के। आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि शंकराचार्य ने किस ब्यूटीफुल तरीके से, है ना, कितने आसानी से सारी चीजों को, है ना, सिंथेसाइज कर दिया। ठीक है, तो ये सब सिंथेसिस वाला था। ठीक है, इसके बाद अच्छा, है ना, सब लोग प्रमाण की बात करते हैं। ठीक है, प्रमाण कि कितने प्रमाण होंगे। प्रमाण मींस अ वे टू अटेन द नॉलेज। ठीक है, तो कुछ फिलॉसफी है जैसे चार्वाक है, तो चार्वाक सिर्फ एक ही प्रमाण की बात करते हैं कि देयर इज ओनली वन प्रमाण, एंड दैट वन प्रमाण इज प्रत्यक्ष प्रमाण। वन प्रमाण इज प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर आए जैनिज्म, बुद्धिज्म। जैनिज्म, बुद्धिज्म दोनों ही प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों की बात करते हैं। प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को एक्सेप्ट करते हैं। प्रत्यक्ष मींस आपका परसेप्शन और अनुमान मींस आपका इन्फेरेंस। फिर कुछ स्कूल आए जैसे न्याय स्कूल। न्याय स्कूल 4 प्रकार के प्रमाण एक्सेप्ट करता है: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, उपमान एंड शब्द। उपमान एंड शब्द। ठीक है, न्याय स्कूल भी यही एक्सेप्ट करता है, और जो महर्षि जेमिनी का आपका मीमांसा स्कूल है वो भी इसी को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, फिर प्रभाकर मीमांसा आती है, तो प्रभाकर जो है वो एक्सेप्ट करते हैं 5 प्रमाण, मतलब प्रमाणों की संख्या भी बढ़ गई, 5 प्रमाण। 4 तो ये हो ही गए आपके जो यहां पे है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड शब्द, और वो 5वां भी एक्सेप्ट कर लेते हैं जिसे कहते हैं अर्थपत्ति। और फिर 6 प्रमाण एक्सेप्ट करते हैं कुमारिल भट्ट, जिनकी जो मीमांसा है जिन्हें कहते हैं भट्ट मीमांसा। तो वो ये 5 प्रमाण, 4 तो ये प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। और शंकराचार्य अलोंग विथ कुमारिल भट्ट कहते हैं कि देयर आर 6 प्रमाण। ठीक है, अगेन लॉजिकल कल्मिनेशन, सबको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चीजें आधी अधूरी दिखाते हैं, शंकराचार्य उसको कंप्लीट कर देते हैं, उसको उसकी नियति तक ले जा करके छोड़ देते हैं। ठीक है, दिस इज अद्वैतवाद, एंड दैट इज व्हाई अद्वैतवाद इज दैट मच पॉपुलर इन इंडिया। है ना, आपको लगेगा कि यार इतनी सारी फिलॉसफीज हैं, है ना, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, लेकिन अद्वैतवाद इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो वो अद्वैतवाद इस वजह से इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाई इट इज द मोस्ट परफेक्ट फिलॉसफी। इट रिजॉल्व ऑल द कॉन्ट्राडिक्शंस। ठीक है, 3 levels ऑफ रियलिटी, एक्सप्लेन अपीयरेंस, synthesize all the tradition and provide substratum, that is Brahma. ठीक है, so you have n number of point to write that why Advaitwad is considered as logical culmination of Vedic thought, or you can say entire Indian philosophy. एक बार फिर से मुझे आपको एक चीज़ बतानी है कि ये जो बैच है ये 27 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, और 27 जनवरी तक ही आपके पास एक यहाँ पे जो ऑफर चल रहा है दैट इज 77% वाला, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, और अब ये एडिशनल फीचर्स भी आप लोगों को मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।